Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Praise you, King of glory. We magnify your name, King of glory. Hallelujah. Give you praise and glory and honor. Lord Jesus, we exalt your name. We bless you, Jesus of Nazareth. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. Bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we bless you. We praise you, Lord. Hallelujah. Lord, we glorify you. Lord, we exalt you. Lord, we magnify your name, Lord Jesus. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद. हालेलुया. आइए प्रार्थना करें. प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो. प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, स्तुति हो, महिमा हो. प्रभु जी, हम आपके पवित्र लहू की कुदरत को खोलते हैं, पवित्र लहू की सामर्थ को खोलते हैं. यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू की सामर्थ को खोलते हैं. यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू हमारे दिलों में, हमारी रूहों में, हमारी जानों में काम करे खुदावंद इसी समय. In a fresh way, Lord, unleash your blood inside us, inside our soul, inside our mind, Lord. Let the blood flow inside our blood veins. Let your precious blood flow. Hallelujah. Cover our conversation and meditation on your word under your blood. तेरे लहू में प्रभु हम तेरे जो वचन पे मनन करेंगे, तेरे खून में से ढांप खुदावंद. तेरे लहू की कुदरत के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. Lord Jesus, we bless you, bless you, bless you, Lord. We bless you and we praise you, Lord. We bless you and we praise you. Lord, we bless you and we praise you. Lord, we bless your name. We praise your name, Lord Jesus. We magnify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad ho. Father, in the mighty name of Jesus, we draw nigh unto you, Lord. We draw nigh unto your throne of grace and mercy, Lord. Lord, we come to your banqueting table. Lord, we know, we experienced, we have understood it fully well, that we shall not live by bread alone, but we shall live by the word that come out of your mouth. The very living words that proceed out of your mouth. For there are words coming out of the mouth of the living God at all times. परमेश्वर, तेरे मुंह में से हर समय जीवित शब्द, जीवित वचन बाहर निकलते हैं. हालेलुया. हम तेरे जीवित वचनों के लिए तेरे पास आते हैं स्वर्गीय पिता. तेरे जीवित वचनों के लिए तेरे पास आते हैं. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. Lord, we bless you, bless you, bless you, bless you. We praise you. We praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify you, glorify your name, Lord, glorify your name. Hallelujah. We glorify your name, glorify your name, glorify your name.
Lord Jesus, teach us your word. Open our heart, make our mind receptive, alert to learn, Father. And Lord, let your word sink deeper into our heart. तेरा कलाम हमारे दिल की गहराई में उतरे खुदावंद, छुएं खुदावंद, हमें छुएं खुदावंद, हालेलुया, छुएं। तेरे लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो, हालेलुया, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जो संदेश मैं आपसे देने जा रहा हूँ, मैंने इसको इस सब्जेक्ट पे कम से कम 10 घंटे की या 12 घंटे की, और शायद हो सकता है 13-14 घंटे की टीचिंग हो, लेकिन मैं फिर ये वचन आपको सिर्फ 3 स्क्रिप्चर जो मैंने लिख के दिए हैं आपको, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 1 से 4 वचन, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 1 से 4 वचन, और यहूदा की पत्री उसका 5वां और 6ठा वचन। सिर्फ इन वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, जैसे मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इसका फर्स्ट वचन से पढ़ता हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 से, एंड इट केम टू पास when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. The sons of God saw the daughters of men, that they were fair. They took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for he is also flesh, yet his days shall be 120 years. And they were giants in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children unto them, the same became mighty men which were of old, men of renown. हालेलुया। तो इसकी बैकड्रॉप में मैं आपको एक स्क्रिप्चर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, उसके 22 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत ना तो स्वर्ग में स्वर्गदूत दे नीदर मैरी नॉर दे आर गिवन इन मैरिज, ना तो वो शादी करते हैं, नॉर दे आर गिवन इन मैरिज। तो ये स्क्रिप्चर आप अपने माइंड में रखिए कि यीशु मसीह ये बात कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जो हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं कि जेनेसिस चैप्टर 6 उसके 1 से लेकर 4 वचन में यहाँ पे 3 मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र। तो मैंने आपको पहले भी हिब्रू टेक्स्ट निकाल के, और मैंने आपको पहले बहुत से एक्स्ट्रा बिब्लिकल टेक्स्ट में से भी बहुत सारी टीचिंग दी, और फिर मैंने आपको जेनेटिक साइंस के हवाले दे के टीचिंग दी, विज्ञान के हवाले दे के, आर्कियोलॉजी के हवाले दे के, हिस्टोरिकल हवाले दिए। फिर मैंने आपको बताया कि अर्ली चर्च क्या बिलीव करती थी, एक्सक्यूज़ मी, जो अर्ली चर्च फादर थे वो क्या बिलीव करते थे। मैंने उन सब की कोटेशंस आपको ऑलरेडी दी, उसमें से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बड़ा ब्रीफ सा एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे हिब्रू में एक टर्म है बिनाए खा एलोहीम, बिनाए खा एलोहीम, बिनाए खा एलोहीम, या अगर ग्रीक में हो तो बार एलोहीम होगा। ये बार एलोहीम भी अक्कर होती है डैनियल 3:25 में, लेकिन जो मेन टर्म है वो है बिनाया एलोहीम, जिसे बिनाए इलीम भी कहा गया प्लूरल में, और जिसे बिनाए एलियोन भी कहा गया। ये 3 टर्म्स हैं। हालेलुया। तो ये जो बिनाए हा एलोहीम है, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, ये बाइबल में ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज़ है, मैंने आपको सारे रेफरेंस दिए, ये कहाँ कहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है, एक एक मैंने आपको रेफरेंस दिया और बताया कि जहाँ कहीं भी बाइबल में बिनाए है एलोहीम, जैसे अयूब 1:6, अयूब 2:1, अयूब 38:7 और साम 29:1, साम 89:6,
डैनियल 3:25, जहाँ पे भी ये वर्ड बिनाया एलोहीम आता है, इसका मतलब होता है एंजल्स। इट डज नॉट रेफर एट ऑल टू द सन्स ऑफ सेथ। कुछ लोग ये शिक्षा देते हैं कि ये सेथ की औलाद थे और वो कैन की बेटियां थी। तो इस टीचिंग को, सेथ की वो औलाद थे, बिनाया एलोहीम टर्म को आप बिब्लिकल टेक्स्ट से कहीं भी प्रूव नहीं कर सकते। कोई भी आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा कि बिनाया एलोहीम जो थे वो सेथ की औलाद थे। बाइबल बताती है जब भी बिनाया एलोहीम, बिनाए एलोन या बार एलोहीम या बिनाए इलीम वर्ड आता है, इसका मतलब है एंजल्स। इट ऑलवेज एक्सक्लूसिवली डिनोट्स टू एंजल, इसका मतलब है स्वर्गदूत। तो ये वचन स्पष्ट बताता है कि ये स्वर्गदूत हैं जो मनुष्य की बेटियों के संग कोहैबिट करते हैं और उनमें से जो संतान पैदा होती है। इसमें 2-3 बातें हैं। पहले है बिनाया एलोहीम, परमेश्वर के पुत्र, जो मैंने आपको बताया। दूसरा इसके अंदर है मनुष्य की बेटियां, बात हा आदमा, मनुष्य की पुत्रियां। और तीसरी चीज़ जो है परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों के मिलाप से, संयोग से, इनके शारीरिक संबंधों से जो संतान पैदा होती है उसे बाइबल कहती है नफलीम, जिसका मतलब है फॉलन वंस, नफाल्स। और उसे अगर आप उस वर्ड को देखेंगे लैटिन टेक्स्ट में उसे गिबरीम कहा गया, गिबरीम, जिसकी ट्रांसलेशन की गई दैंत। बड़े बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर के लोग, बड़े बड़े लंबे चौड़े। बाइबल में जैसे ओग बशान का राजा है जो शायद 15-16 फुट का था, 14-15 फुट का होगा, क्योंकि जो क्यूबिट है, क्यूबिट कुछ लोग 25 इंच का, 26 इंच का, 24 इंच का मानते हैं। तो क्यूबिट की जो मेजरमेंट है मिस्र की अलग है, बेबीलोन की अलग है, जूइश लोगों की अलग है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन वो दानव थे, बड़े बड़े दानव। कनान की धरती में 7 प्रकार की दानवों की प्रजातियां थी। वैसे तो दानवों की लाखों प्रजातियां थी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन कनान में 7 ऐसी दानवों की प्रजातियां थीं जिनको हराना इजरायलियों के लिए शारीरिक शक्ति के द्वारा असंभव था। इसलिए यहोवा ने उनसे वादा किया था कि मैं स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के संग लड़ूंगा। तो अब सबसे पहला तर्क ये है कि यदि वो मनुष्य के जो सन्स ऑफ गॉड थे, बिनाया एलोहीम, वो सेथ की औलाद थे और ये कैन की बेटियां थीं, तो उनके मिलाप से भाई दानव कैसे पैदा हो गए, नफलीम कैसे पैदा हुए, गिबरीम कैसे पैदा हुए। और हनूक अपनी पुस्तक में, हनूक की एक पुस्तक है, वैसे तो 3 पुस्तकें हैं, लेकिन जो हनूक की बुक नंबर 1 है उसमें से 6-7 रेफरेंस लिए गए हैं न्यू टेस्टामेंट में, जो ये बात को बताता है कि हनूक की पुस्तक नंबर 1 इंस्पायर्ड है या उसका कुछ सेगमेंट इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसमें से कोटेशन ली हैं प्रभु के दासों ने और न्यू टेस्टामेंट में दर्ज हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपको मालूम 31,000 आयतें हैं बाइबल में, 31,000। तो बाइबल की खूबसूरती आप देखेंगे, बाइबल की सबसे बड़ी कमेंटरी स्वयं बाइबल है। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से और प्रार्थनामयी रूप से, ज्ञान हासिल करने की होड़ में नहीं, टूटे हृदय से प्रार्थनामयी रूप से एक खोजी होके प्रभु के चेहरे के वचन अध्ययन करेंगे, तो बाइबल अपने आप बाइबल को एक्सप्लेन करेगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा पत्रस की पत्री निकालें, उसका दूसरा अध्याय, 2 पीटर चैप्टर नंबर 2। अब सुनिए दूसरे पत्रस के अंदर क्या लिखा है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय। तो ये एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं,
मैं आपको हनूक की पुस्तक का रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि हनूक बोलता है कि जारेड जो था, जारेड यीशु मसीह की वंशावली में जारेड, जारेड का मतलब होता है डिसेंड करना, उतरना। तो जारेड जब पैदा हुआ, वो प्रोफेसी थी कि जब जारेड पैदा होगा तो 200 वॉचर, 200 ख़ास किस्म के फरिश्ते वॉचर माउंट हरमन पे उतरेंगे। माउंट हरमन पे वो जगह जहाँ 33 डिग्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। ज्योग्राफिकली आज भी उसे आप देख सकते हैं जाके, नॉर्दर्न इज़राइल में, सीरिया के पास हरमन पहाड़ पे, जो गोट के बकरी के सिर के जैसा दिखाई देता है। बकरी का सिर क्यों? क्योंकि हनूक बताता है कि जो एंजल 200 उतरे, उनका जो हेड था, मुखिया था, वो था अजाजेल। अजाजेल बाइबल में एक बकरे को सर पे हाथ रख के उसे यहोवा के लिए अर्पण करता है, उसे कुर्बान कर दिया जाता है, और दूसरे बकरे के सर पे हाथ रखता है और उसे बियाबान में भेज दिया जाता है, जिसके लिए कहा जाता है फॉर दी अजाजेल। तो वो बकरी नुमा 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 33 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर पहाड़ है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंतिम वर्ष में अपने चेलों को वहीं लेके गया, जिसे सिजीरिया फिलिपाई कहते हैं, कैसरिया के इलाके में, और बिल्कुल उस पहाड़ के सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ। ये वही पहाड़ है हरमन भाई और बहनों, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पहले लेके गया था, पतरस, यकूब, यूहन्ना को, और उनके आगे जलाली हो गया था, ट्रांसफिगर्ड, वो अपने जलाल में आ गया था। यीशु मसीह की हर बात में बड़ा गहरा भेद है। जीसस वॉज मेकिंग ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, very powerful statement before those watchers. He was unraveling his majestic glory to the fallen angels जो वहाँ पे उतरे। मैं भी आपको बताता हूँ, जब यीशु मसीह वहाँ खड़े, यीशु मसीह हरमन पहाड़ को फेस कर रहे थे, उसी जगह को, उसी स्पॉट को जहाँ पे 200 वॉचर उतरे थे, वो जगह मार्क की गई। आप वहाँ जा सकते हैं आज भी, जो इज़राइल टूर लेके जाते हैं, वो टूर वहाँ नहीं जाते, आपको स्पेशल अरेंजमेंट करके वहाँ जाना पड़ेगा। उस पहाड़ पे जहाँ पे वो वॉचर उतरे, वो 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 33 डिग्री लैटिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। इसीलिए जो कल्टिक दुनिया है उसमें 33 डिग्री, फ्री मेसनरी लोगों में 33 डिग्री की इनिशिएशन की जाती है। ये कल्ट की दुनिया के संग जुड़ी हुई बातें हैं। वहीं पे निम्रोद का, उसी जगह पे पहाड़ पे निम्रोद का कासल है। निम्रोद जिसके विषय में वचन बताता है वो वापस लौटेगा, वही वर्ल्ड रूलर है, एंटी क्राइस्ट निम्रोद। ही इज़ गोइंग टू कम अगेन। मैं निम्रोद के ऊपर भी परमेश्वर के कलाम में से टीचिंग करेंगे हम जल्दी। तो उसके टॉप पे अगर आप जाके देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस बना है। यूएन भी इस कल्ट कंपनी का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बॉटम में क्या है, नीचे ग्रीक देवता पान का, पान देवता का, कुछ लोग कहते हैं कि वो देवी है। पान जो ग्रीक देवता है उसकी ग्रोटो है। पान से वर्ड निकलता है पखाड, जिसका मतलब है पैनिक, पैनिक लाने वाला देवता है। हालेलुया। वचन में लिखा है 91 साम में, दाउ शैल्ट नॉट बी टेरिफाइड, दैट इज़ द सेम वर्ड दैट इज़ यूज देयर। तो यीशु मसीह अपने चेलों के संग वहाँ खड़ा होता है और यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि बताओ लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। तो वो बड़ी कंफ्यूज सी पिक्चर बताते हैं कि कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है जिर्मिया प्रॉफिट है। तो यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है तुम बताओ मैं कौन हूँ। तो यीशु मसीह के 12 चेले स्तब्ध थे, क्योंकि उनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कि ये देहधारी परमेश्वर है, कि हांड मास में जो खड़ा है हमारे आगे, ये सृष्टि का रचिता है, ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला है। तो वचन में लिखा है स्वर्ग से पिता ने पतरस के ऊपर प्रकाशन भेजा पवित्र आत्मा के द्वारा, और पतरस की आंखें खुली और उसने
अपने आगे खड़ा जिसे देखा, वो आत्मिक आंखों से उसे देख के कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसे पता लग गया जो मेरे सामने खड़ा सृष्टि का रचिता है, ये बड़े ही यूसुफ का बेटा नहीं है, ये घूम घूम के गलील में नासरत में प्रचार करने वाला नहीं है, ये सृष्टि का स्वामी है। तो यीशु मसीह उस पहाड़ की ओर देख रहा है, और यीशु मसीह क्या स्टेटमेंट वहाँ कहता है? यीशु मसीह कहता है, इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह उन शैतानी आत्माओं को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में लेके गया यीशु मसीह अपने चेलों को, जहाँ पे वो वॉचर उतरे थे, और डेक्लरेशन करता है, आई विल बिल्ड माई चर्च। बाइबल में यीशु मसीह ने चर्च शब्द यहीं पे यूज़ किया है। चर्च शब्द नहीं है बाइबल के अंदर ऐसे जैसे यहाँ पे यीशु मसीह के मुंह से निकला है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं, कलीसिया बनाने वाला इंसान नहीं है, कलीसिया बनाने वाला मैं हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया, कलीसिया किसी मनुष्य की नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह कहता, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और क्या खासियत कहते हैं उस कलीसिया की जो चट्टान पे खड़ी है? यीशु मसीह कहते हैं, नरक के फाटक। वहाँ पे नरक के फाटक हैं, उस पहाड़ के नीचे पान देवता का टेम्पल है। जो लोग ग्रीक लोग विश्वास करते हैं कि पान जो था वो नेदर वर्ल्ड का डोर कीपर था, हेडीज़ का, नरक का डोर कीपर है वो, और वहाँ पे नरक का दरवाज़ा है, फाटक है। यीशु मसीह कहते हैं, नरक के फाटक मेरी कलीसिया पे कभी गालिब ना होंगे। हालेलुया। एवरीथिंग जीसस डिड वाज एब्सोल्युटली मैजेस्टिक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 पीटर में, दूसरे पत्रस में, उसका 2 अध्याय निकाल लें और मेरे संग पढ़ें ये वचन। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ें। देखें क्या कहता है प्रभु। इफ गॉड स्पेयर्ड नॉट द एंजल्स, यदि परमेश्वर ने एंजल को स्पेयर नहीं किया, इफ गॉड डिड नॉट स्पेयर द एंजल, लेकिन क्या कहता है, दैट सिंड, हमाटिया वर्ड है यहाँ पे, जिन्होंने पाप किया। ये कुछ खास एंजल की बात कर रहा है प्रभु, ध्यान से सुनिएगा। इफ गॉड डिड नॉट स्पेयर द एंजल दैट सिंड बट कास्ट देम डाउन टू हेल, जिन एंजल्स ने पाप किया, प्रभु ने उन्हें स्पेयर नहीं किया, छोड़ा नहीं, बल्कि उनको कहाँ डाला? हेल में। यहाँ पे हेल के लिए जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड, वो है टार्टरस। यहाँ ग्रीक वर्ड है टार्टरो, जो असली वर्ड है वो है टार्टरस। टार्टरस एक नरक के अंदर एक अलग डिमेंशनलिटी है, एक अलग रेल्म है, जहाँ पे एक कैद है। उस कैद के अंदर इनको फेंका हुआ है यहोवा परमेश्वर ने। बट कास्ट देम डाउन टू हेल एंड डिलीवर्ड देम इनटू चेन्स ऑफ डार्कनेस। और नरक की एक कोठरी में, नरक नहीं टार्टरस है, ये अलग जगह है, ये अलग डिमेंशन है टार्टरस। उनको चेन से बांधा, चेन के लिए ग्रीक वर्ड है सारा, जिसका मतलब है फासन किया है, टाइटली बांधा हुआ है। और चेन्स ऑफ डार्कनेस है, सारा जफोस ग्रीक वर्ड है, सारा जफोस। फोस जो होता है उसका मतलब होता है रोशनी, फॉस का मतलब रोशनी। जब यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो यीशु मसीह अपने आप को फॉस कहते हैं। फॉस का मतलब रोशनी। जब जफोस उसके आगे नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया तो ये बन जाता है अंधेरा। ये जो अंधेरा है, ये अंधेरा है एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। चेन्स, सारा जफोस, जफोस यहाँ पे जो अंधेरा है ये है ब्लैकनेस, डार्कनेस, डार्क स्मोक, डार्क मिस्ट। ये ऐसा काला धुआं है जो बहुत घना है, काली मिस्ट है, ब्लैकनेस है ये, जहाँ पे इन एंजल को डाला हुआ है। ये अलग कैटेगरी के एंजल हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। इनको चेन के साथ बांध के डाला हुआ है।
क्या किया, आगे क्या लिखा है, चेन्स ऑफ डार्कनेस टू बी रिजर्व्ड, उनको रिजर्व किया है। रिजर्व के लिए जो वर्ड यहाँ पे प्रेरित पतरस यूज़ करता है वो है टिरियो, जिसका मतलब है कस के पकड़ के रखना, उनके ऊपर वॉच ठहराना, निगरानी करना, उनको मजबूती से बंद करके रख देना, ऐसे करके उनको रखा गया है। अन टू द जजमेंट, उनका जजमेंट होगी। जजमेंट के लिए वर्ड है केरेसिस, जिसका मतलब है कॉन्डेमनेशन, जज करके उन्हें परमेश्वर कंडेम करेगा। ये जो जजमेंट के लिए बांध के फेंके गए हैं, कुछ एंजल है, कुछ, सारे नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे इफ्सियों 6:12, वहाँ लिखा है प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, डोमिनियन, थ्रोन और स्पिरिचुअल विकेडनेस, और आत्मिक, गंदी आत्मिक सेनाएं जो आसमानी मकामों में है। बहुत सारे डीमंस ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको परमेश्वर ने क्या किया है, डार्कनेस की चेन में बांधा हुआ है और फेंका हुआ है नीचे। हालेलुया। डार्कनेस की चेंज में ये बंधे हुए हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेरित पतरस कौन सा मैसेज दे रहा है हमें। प्रेरित पतरस जब ये पत्री लिख रहा है वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी अपनी पृथ्वी की मानवीय यात्रा ख़त्म हो रही है, जो कोर्स उसने दौड़ना था वो पूरा हो रहा है। और प्रेरित पतरस अपने जाने से पहले कलीसिया को वार्निंग दे रहा है कि क्या होने वाला है पृथ्वी के ऊपर, और वो क्या करना चाहता है, परमेश्वर का सच्चा पैगाम कलीसिया तक पहुंचाना चाहता है। अगर आप पढ़ेंगे ना पहला पतरस 2 अध्याय का पहले वचन से पढ़ें, बट देयर वर फॉल्स प्रॉफिट्स अमंग द पीपल इवन एज देयर शैल बी फॉल्स टीचर्स अमंग यू हु प्रिवली शैल ब्रिंग इन डैमनेबल हेरेसीज even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction। कि जैसे उस समय झूठे नबी थे, तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक होंगे जो झूठी शिक्षा तुम्हें देंगे और शैतानी तलीमें तुम्हें सिखाएंगे और डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, तबाही लेकर आएंगे लोगों पे। एंड मैनी शैल फॉलो देयर परनिशियस वेज बाय रीज़न ऑफ द वे ऑफ ट्रूथ शैल बी ईवल स्पोकन ऑफ। बहुत सारे लोग उनकी गलत तलीम के ऊपर चलेंगे और परमेश्वर के मार्ग की निंदा की जाएगी। तीसरा वचन, एंड थ्रू काविचसनेस शैल दे विद फेन्ड वर्ड, वो लोभी होंगे पैसे के, लालची। और फेन्ड वर्ड मैंने इसके ऊपर आपको टीचिंग दी है, ये शैतानी शब्द हैं, शैतानी शब्द बोलेंगे फेन्ड वर्ड। मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू, तुम्हारे संग रूहानी बिजनेस करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या करेंगे? तीसरा वचन, एंड थ्रू काविचसनेस, लालची होंगे ये प्रचारक और ये नबी, और ये शैतानी शब्दों को बोल के झूठी शिक्षा आपको देंगे और रूहानियत का व्यापार करेंगे, हर चीज़ को सेल करेंगे। एनॉइंटिंग को छोटी बोतल में तेल की डाल के, पानी की डाल के, कपड़े को, हर तरह की छोटी मोटी चीज़ों को बेचेंगे प्रभु के नाम में। Whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not, जिनकी जजमेंट और कॉन्डेमनेशन होगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे आते प्रेरित पतरस कहता है कि परमेश्वर ने तो एंजल को भी नहीं छोड़ा, उनको चेनों में बांध के फेंका हुआ है। फिर आगे इसके अगर आप पढ़ेंगे 6ठा वचन, किसके संग जोड़ रहा प्रभु इसको? कहता है 5 वचन में लिखा है, एंड गॉड स्पेयर्ड नॉट द ओल्ड वर्ल्ड, सेव्ड नोहा द 8th person, द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, ब्रिंगिंग इन द फ्लड अपॉन द होल वर्ल्ड ऑफ द अनगॉडली। प्रभु कह रहा है कि उस जमाने में जब इन बिनाया एलोहीम ने स्त्रियों के संग संबंध बना के शैतानी बीज पैदा किया, तो परमेश्वर ने जल प्रलय भेज के सबको नाश कर दिया। नूह को बचाया, 8 लोग कुल बचाए। तो क्या कहता है, किसके संग जोड़ रहा है इन एंजल का? नूह के समय जो शैतानी काम हुआ उसकी जजमेंट के साथ, और फिर इसको किसके संग कनेक्ट कर रहा है 6ठे वचन में? एंड टर्निंग द सिटीज ऑफ साडम एंड गमोरा इनटू एशेस, कंडेम्ड देम विद एन ओवरथ्रो, मेकिंग देम एनसैम्पल्स अनटू दोज दैट आफ्टर शुड लिव अनगॉडली। प्रभु किसके संग जोड़ रहा है? प्रभु इस पूरी घटना को जोड़ रहा है लूत के समय
सदोम और गमोरा पे जो आग और गंधक बरसाई गई, क्योंकि सदोम और गमोरा में LGBTQ लोग रहते थे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, हर तरह के शारीरिक गंदे काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, फर्निकेशन करने वाले, जानवरों के साथ गलत काम करने वाले, परिंदों के साथ, मैमल के साथ, जानवरों के साथ गलत काम कर, हर तरह के सेक्सुअली परवर्ट जो लोग थे, परमेश्वर ने उनको नाश किया। और इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों एंजेलिक सिन है, ये फरिश्तों के द्वारा इंस्टिगेट किए गए पाप हैं, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर एक भयंकर जल प्रलय भेजी। और क्या कहता है? एंजल हु सिंड, स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया। ये वो स्वर्गदूत नहीं है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वाले, जिन्हें जो शैतान अपनी पूंछ के साथ बांध के गिरा लिया। ये वो पाप नहीं है, ये अलग पाप है। ये अलग पाप है, इसलिए इन्हें चेन के अंदर बांध के भाइयों और बहनों फेंका हुआ है, अंधकार की चेन के साथ बांधा हुआ है, टार्टरस में फेंका हुआ है, जेल के अंदर फेंका है। वो तो बाकी आज़ाद हैं सभी। तो मेरा सवाल ये है, जो लोग कहते हैं कि वो सेथ की औलाद हैं, तो इनको भाई चेन में यहोवा ने अंधेरे की चेन में बांध के फेंका है, किस पाप के लिए? जबकि बाकी आज़ाद हैं। इफिसियों 6:12 और पूरी बाइबल पढ़िए, वो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के अंदर ब्लाइंडनेस भेज रहे हैं कि मसीह की ज्योति उनके ऊपर ना चमक सके। इनको टार्टरस में भेजा है, एक जेल के अंदर। अब मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूँ। तो पतरस भी बताता है 6ठे वचन में कि इसका कनेक्शन सेक्सुअल परवर्जन से है। दिस सिन ऑफ द एंजल इज अ सेक्सुअल सिन। ये बनाए हा एलोहीम सेथ की औलाद नहीं है। सेथ की औलाद को यहोवा ने कहीं चेने बांध के नहीं डाला हुआ। ये शिक्षा वचन के अनुसार नहीं है जो लोग देते हैं। अब मैं आपको यहूदा की पत्री में से वचन देना चाहता हूँ। यहूदा की पत्री पढ़ें। जूड वचन को खोजें, आप स्वयं वचन को खोजिए। यहूदा की पत्री में एक ही अध्याय है, उसके मैं आपको 5 और 6 वचन को पढ़ता हूँ, 5 को भी पढ़ देता हूँ, सुनिए। I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. क्या कहता है यहूदा? कि परमेश्वर पहले तो इसराइलियों को मिस्र में से छुड़ा लाया अद्भुत काम करके, लेकिन बाद में बियाबान में उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो प्रभु के मार्ग पे चले नहीं, इसलिए परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 6ठे वचन में आए तो क्या कहता है? एंड द एंजल विच केप्ट नॉट देयर फर्स्ट स्टेट। जैसे यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को मरुभूमि में मार दिया, उनमें से किसी को कनान में लेके नहीं गया सिवाय यहोशुआ और कालेब के घराने के, और उन लोगों को लेके गया जो बियाबान में पैदा हुए। इसराइलियों के घर में जो बच्चे पैदा हुए 40 सालों में बियाबान में, जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, उन सबको लेके गया। पुरानी जनरेशन सारी मर गई। जैसे अब ये वायरस एक खास जनरेशन को टारगेट कर रहा है, जिसे अमेरिका में बेबी बूमर्स कहते हैं। तो उसके संग इक्वेट कर रहा है, पैरेलल कर रहा है। एंड द एंजल विच केप्ट नॉट देयर फर्स्ट स्टेट, वो दूत जिन्होंने अपनी पहली स्टेट के अंदर नहीं रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जूड क्या कहता है। जूड कहता है विच केप्ट नॉट, जिन्होंने रहे नहीं। केप्ट वर्ड अंग्रेजी में ग्रीक वर्ड है टिरियो। टिरियो का मतलब क्या है? टिरियो का मतलब है होल्ड फास्ट, स्टे टुगेदर इंटैक्ट, टू कीप अ वॉच। मतलब कि उसके अंदर रहना, उस मकाम में कायम रहना, उस दशा में, उस स्वरूप में बने रहना, उस वजूद के अंदर कायम रहना। ये स्वर्गदूत जो हैं उस वजूद में कायम नहीं रहे, उस दशा में कायम नहीं रहे, उस स्टेट में कायम नहीं रहे, या हम कहें
कि उस डिमेंशन में कायम नहीं रहे, उस डोमेन में, डिमेंशियलिटी में जिसमें यहोवा ने इन्हें बनाया। जो केप्ट नॉट के लिए वर्ड है ट्रियो, और लिखा है अपनी फॉर्मर स्टेट। फॉर्मर के लिए ग्रीक वर्ड है आर्केक। आर्केक, आर्केक वो वर्ड है जहाँ से आर्कियोलॉजी शब्द निकलता है। आर्के का मतलब अपनी एंशंट फॉर्म, जिस सूरत में यहोवा ने इनको बनाया, जिस रूप में यहोवा ने इनको रचा, जिस वजूद में, जिस देह में यहोवा ने इनको क्रिएट किया, ये उस देह में, उस वजूद में, उस दशा में कायम नहीं रहे। तो यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत दे नीदर मैरी नॉर दे आर गिवन इन मैरिज। तो इन्होंने उस स्टेट को ही छोड़ दिया, दे अबेंडन दैट स्टेट, जो स्टेट हेवन में एंजल की है, जिसमें वो शादी नहीं करते। दे डोंट मैरी, दे आर नीदर गिवन इन मैरिज। इन एंजल ने वो स्टेट ही त्याग दी अपनी। दे केप्ट नॉट ट्रियो देयर फॉर्मर स्टेट, देयर आर्केक स्टेट। उन्होंने अपनी पुरानी आर्केक, पुरानी स्टेट के लिए, अब देखें ग्रीक वर्ड क्या है। स्टेट के लिए यूनानी वर्ड है ओइकाटारियोन। ओइकाटारियोन, ओइकाटारियोन ग्रीक वर्ड है स्टेट के लिए, जो जिस शब्द का मतलब है रेजिडेंस हाउस, ड्वेलिंग प्लेस। ये दूत जिस ड्वेलिंग प्लेस में, जिस रेजिडेंस में, जिस सूरत में, जिस मर्तबे में, जिस सब्सटेंस के अंदर ये बनाए गए थे, इन्होंने उसको त्याग दिया। अर्थात इन्होंने उस इटर्नल डोमेन को छोड़ दिया और ये मनुष्य की सूरत में बनाए। वचन में लिखा है शैतान ज्योति के रूप में भी अपने आप को बदल लेता है, बदरूहें अपने आप को तब्दील कर लेती हैं। इन्होंने अपनी पुरानी स्टेट त्याग दी और दूसरी फॉर्म में आ गए। ओके टीरियो, अपना पुराना घर छोड़ दिया, जिस घर में यहोवा ने इनको रखा था। यहाँ पे लिखा है दे लेफ्ट देयर ओन हैबिटेशन, फॉर्मर स्टेट बट लेफ्ट देयर ओन हैबिटेशन। अपना घर छोड़ दिया, अपनी हैबिटेशन छोड़ दी। तो उनको क्या किया, ही हैथ रिजर्व्ड, उनको रिजर्व कर दिया परमेश्वर ने। ग्रीक वर्ड है टरियो, बांध दिया उनको, कैद में डाल दिया, उनको बिल्कुल टाइटली बांध दिया यहोवा परमेश्वर ने। किसमें? चेन्स। चेन्स के लिए पहले पत्रस के अंदर वर्ड है जारा, यहाँ पे वर्ड है डिस्मोस, जिसका मतलब है बॉन्ड्स, स्ट्रिंग, जिसका मतलब है चेन, उसके अंदर बांध दिया। और ये कैसी चेन्स हैं? ये लिखा चेन्स अंडर डार्कनेस, वो थी चेन्स ऑफ डार्कनेस, था जारा जोफोस, ये हैं डेस्मोस जोफोस। अंधेरे के लिए वही शब्द है। मैंने आपको बताया फॉस का मतलब होता है रोशनी। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे वो वर्ड यूज़ करते हैं फॉस। तो जोफोस का मतलब है अंधेरा, अर्थात रोशनी का ना होना। हालेलुया। अनटू द जजमेंट ऑफ दैट ग्रेट डे। किसके लिए इनको बांधा गया है? जजमेंट के लिए। किरिसिस ग्रीक वर्ड है, और ये जजमेंट होगी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में। सभी लोग जितने पैदा हुए पृथ्वी पे, वो यहोवा के श्वेत वाइट थ्रोन के आगे खड़े होंगे, और ये सब एंजल जज किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मैनकाइंड को परवर्ट किया है, मैनकाइंड को पल्यूट किया है। हालेलुया। तो वचन में मिंगलिंग ऑफ सीड में बहुत टीचिंग है, अध्ययन कीजिए आप इसका। ये जो सीड मिंगल हुआ है भाई और बहनों, ये दुनिया की हर संस्कृति में मिलेगा आपको। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का जो वाक्य है, बहुत सारे बाइबल के विद्वान मानते हैं आदम के बाद, आदम से लेके आगे 1656 ईयर्स के बाद हुआ है। और ये वाक्य के विषय में परमेश्वर ने केवल 4 आयतें लिखी यहाँ पे, जेनेसिस 6:1-4 में। लेकिन इसके बहुत से एल्यूजन्स हैं। बाइबल दैंतों से भरी है, नफलीमों से भरी पड़ी है। पढ़ के देखें आप। बाइबल में ऐसे जाइंट थे जिनकी 6-6 उंगलियां थी, मतलब एक्स्ट्रा थे, वो एडिशंस थी उनकी बॉडी में। उनके जेनेटिक कोड जो थे एनहांस थे, एनहांस जेनेटिक कोड वाले लोग। हालेलुया।
तो ये प्रवर्जन एंड टाइम में आएगी। यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में था, जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मेरी आमद के दिनों में होगा। अब शैतान की स्ट्रेटजी है कि वो लोगों को यही सिखाए कि ये तो सेठ की औलाद हैं, ताकि लोगों को एंड टाइम की बातें समझ ना आ सकें। तो वचन पढ़ें। इसेंशली अब ये ज़रूरी है कि आप लेक्सिकन लें, हिब्रू ग्रीक का। अगर आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं, आप चेक करें वर्ड क्या लिखे वहाँ पे। बाइबल अपने आप को खुद खोलती है, कलाम के साथ कलाम खुलता है। इसको पढ़ें, इसके संग टाइम स्पेंड करें। ये जीवन की पुस्तक है, ये ज़िंदा किताब है, ये आपका हम सफ़र है, आपके संग बातें करेगी ये। हालेलुया। मैं अपना क्वालिटी टाइम इसके संग डिवोट करता हूँ। तो आप भी करें, अध्ययन करें परमेश्वर के कलाम का। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।